ایران کا اسرائیلی جارحیت کے جواب میں بیلسٹک میزائلوں سے ایک اور حملہ۔ ایران نے تل اویو پورٹ سٹی حیفا کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں ڈرونز کا بھی استعمال۔ 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زیادہ زخمی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایک مرتبہ پھر میزائل حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس اور افراتفری۔ ایران کا اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا۔ اسرائیل کا ایران پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ حملے میں مغربی ایران میں میزائل تنصیبات سمیت متعدد اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران سمیت تبریز اور بندر عباس پر حملے کیے گئے۔ جنوبی صوبے بوشہر میں بھی 2 بڑے گیس فیلڈز پر حملے کیے گئے۔ تہران میں شہران آئل ڈیپو اور ایک فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا، تاہم دونوں مقامات پر صورتحال قابو میں ہے۔ ایرانی وزارت تیل۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران کے 65 شہری شہید ہوئے، جبکہ 300 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ کر دیا۔ اسرائیل کے جاری حملوں کے باعث مذاکرات بے معنی ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حملے ایران کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی بھی شدید مذمت کی۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ ایران، فلسطین اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور غیر قانونی کارروائیاں فوری بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم پاکستان کا بلا جواز اسرائیلی جارحیت پر حکومت ایران اور برادر عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ حملے ایرانی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی صدر سے اظہار تعزیت۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کی حمایت سے آگاہ کیا۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کے جارحانہ رویے اور غیر قانونی اقدامات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ سلامتی کونسل میں ایران کے لیے پاکستان کی حمایت قریبی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس۔ صدر مسعود پزشکیان نے موجودہ صورتحال پر ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری بالخصوص اسلامی ممالک خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ ایرانی صدر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت۔ سعودی ولی عہد کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ حملے ایران کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی بھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک بات چیت۔ خطے میں ممکنہ عدم استحکام پر تشویش کا اظہار۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو علاقائی استحکام کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے۔ ترک صدر۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरान और इसराइल के दरमियान हर सूरत जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन का इत्तेफाक। पुतिन की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अमरीका ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ख्वाह है डोनाल्ड ट्रंप। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब को इसराइली जारियत के बाद की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। सैयद अब्बास इराक़ची ने ईरान का मौक़िफ़ समझने और इसकी हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी। गजा में सहूनी बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फायरिंग और फजाई हमलों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मरकज पर फायरिंग से 15 अफराद शहीद। इसराइली फौज का खान यूनिस और जनूबी गजा के करीबी कस्बों के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। झड़पों में एक इसराइली फौजी भी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा का बजट झूठ का पलंदा है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को एक बार फिर धोखा दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 34 में से 24 जामियात के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद तालीमी निज़ाम तबाहाल है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की नौशहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रिया की जूडोका ओलंपियन सेब्रीना फिल्स मोजर का साइकिल पर अनोखा सफर। सिर्फ 12 रोज में 2324 किलोमीटर का फासला तय करके स्कर्दू पहुंच गईं। C2 समिट के नाम से साइकिल पर फिल्स मॉरिस का ये सफर सतह समंदर कराची से शुरू करके 2 बेस कैंप की जानिब बढ़ रहा है। सबरीना का अगला हदफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करना है। लंदन में WTA 500 क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप। जर्मनी की तातियाना मारिया और अमेरिका की अमंदा एनिसमोवा फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में तातियाना मारिया अमेरिका की मेडिसन कीज को शिकस्त दी। अमंदा एनिसमोवा ने चीन की किन मिनजेंग को 3 सेट्स में हराया। और नेदरलैंड्स में ATP 250 हर्टोगेन बोश टेनिस टूर्नामेंट फाइनल कनाडा में गैब्रियल डालू और बेल्जियम के ज़ेज़ियोबर्गस के मद्दे मुकाबिल। सेमीफाइनल में डालू ने फ्रांस के ओगो हैम्बर्ट को शिकस्त दी। ज़ेज़ियोबर्गस ने अमेरिका के लकी लोज़राइली ओपल्का को हरा दिया। जर्मनी में ATP 250 स्टटगार्ट ओपन फाइनल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और अमेरिका के टेलर फर्टिस के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में टॉप सीडेड ज़वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त दी। टेलर फर्टिस ने कनाडा के फ्लेक्स इलियासम को हराया। और अमेरिकन बास्केटबॉल NBA बेस्ट ऑफ 7 सीरीज फाइनल का चौथा मैच ओक्लाहामा सिटी थंडर ने इंडियाना पेसर्स को हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। ओक्लाहामा ने इंडियाना पेसर्स को 101 और 111 पॉइंट से शिकस्त दी। शाय ग्लेकिस ने 35 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान पर इसराइली जारियत के जवाब में ऑपरेशन वादा सादिक सोएम।
ईरान की जानिब से 100 बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव, पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाया गया। हमलों में ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम एक मरतबा फिर ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इन हमलों के नतीजे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ताज़ा हमलों में 10 इसराइली हलाक जबकि 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। ईरान ने इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के F-35 समेत 10 तैयारों और वजारत दिफा की इमारत समेत मुख्तलिफ फौजी तनसीबात भी तबाह कर दी गई हैं। ईरान पर हमले के बाद इसराइली शहरियों ने बड़ी तादाद में सुपर मार्केट्स और स्टोर्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली शहरी खाने पीने की अशिया, पानी, खुश्क खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया बड़ी मिकदार में खरीद कर ज़ख़ीरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने तेहरान पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। हमले में मगरबी ईरान में मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के मुतअद्दिद अहम मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से तेहरान समेत तबरेज़ और बंदर अब्बास पर हमले किए गए। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक इसराइली हमलों में तेहरान में शहरान ऑयल डिपो और एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, ताहम दोनों मकामात पर सूरत हाल काबू में है। जनूबी सूबे बोशहर में 2 बड़े गैस फील्ड्स पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया और इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इसराइली हमलों में तेहरान में वजारत दिफा की एक इमारत और उससे मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च को भी हदफ बनाया गया, जिससे एक दफ्तर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। IDF का दावा है कि ताज़ा हमले असलहा ज़ख़ीरा करने और मिसाइल लॉन्च करने वाली तनसीबात पर किए गए हैं। इन तमाम अहदाफ को ईरान के मुबैना जोहरी हथियारों के मंसूबे से वाबस्तगी के बायस निशाना बनाया गया है। IDF ने यह भी दावा किया है कि मगरबी ईरान में एक ज़ेर ज़मीन मकाम को निशाना बनाया गया, जहां से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल और क्रूज मिसाइल ज़ख़ीरा और लॉन्च किए जाते हैं। इजरायली हमलों में अब तक ईरान के 65 शहरी शहीद हो चुके, जबकि 300 से ज़्यादा जख्मी हैं। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान की जानिब से इजराइल पर गुज़श्ता रात 2 मरतबा मिसाइल दागे गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हैफा बंदरगाह में ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल हमलों के बाद वसी पैमाने पर तबाही दिखाई देती है। इसराइली पुलिस ने ऐलान किया है कि वो ईरानी मिसाइलों का निशाना बनने वाले मकामात पर मौजूद हैं और जख्मियों की मदद कर रहे हैं। इसराइली फौज ने इससे कबल मुल्क के शहरियों से कहा था कि वो जारी करदा हिदायत पर अमल करें। इसराइली फौज के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर नहीं है और अवाम को जारी करदा वार्निंग्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख कर दिया है। जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर आज ओमान में होना था, जिसकी तस्दीक ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि पायदार अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इसराइल के जारी हमलों के बायस मुज़ाकरात बेमानी हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करना है। उसूली तौर पर एक ऐसी जमात के साथ बातचीत में हिस्सा लेना बेमानी होगा जो हमला आवर की सबसे बड़ी हिमायती और साथी हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ जाहिरियत पर हुकूमत ईरान और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि इसराइल का इक़दाम खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म ने हमलों के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर सदर पज़ेश्कियान से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिमजोई को इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर आज़म ने इसराइल की जानिब से बहादुर फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़ालिमाना नस्लकुशी की कार्रवाइयों की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल के जारहाना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने मुश्किल वक्त में बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के साथ पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। उन्होंने वज़ीर आज़म को इसराइल के साथ बहरान पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और आलमी बरादरी बिलखुसूस इस्लामी ममालिक पर जोर दिया कि वो इन खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत के नतीजे में खित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि इसराइल के हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी हैं। इसराइली जारहियत ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारी खुली जारहियत की भी सख्त मज़म्मत करते हुए जोर दिया कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा ईरान, फ़लस्तीन और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी अमन और सलामती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया और कहा कि पाकिस्तान बतौर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन और इस्लामी तावन तंजीम जैसे दीगर फोरम्स पर भी अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्तंबुल में होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार करेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान को इस्लामी तावन तंजीम यूथ फोरम की जानिब से एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद भी दी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपने ममालिक की सिफारती कोशिशों से एक दूसरे को आगाह किया और अमन की कोशिशों में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। सऊदी वली-अहद ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों के खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जारी मुज़ाकरात को भी मुतासर किया, ताहम आज पूरी इस्लामी दुनिया आपकी हिमायत करती है। ईरान के सदर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सदर एर्दोगान ने सऊदी वली-अहद से मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत में इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक संजीदा ख़तरा बन चुका है। मौजूदा सूरत हाल अगर जंग में बदलती है तो उसके नताइज खित्ते में गैर मामूली इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने टेलीफोन पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू की। इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए खित्ते में मुमकिन आदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर ने अपने ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए जौहरी मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख हो गए हैं। माननीय वज़ीर ख़ारजा ने मस्कत में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख होने की तस्दीक की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। सदर पुतिन ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई की मजम्मत की और कशीदगी में इजाफे के खतरात पर तशवीश का इजहार किया। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ख्वाहां है। और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची को टेलीफोन किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब को इसराइली जारहियत और अपने मुल्क के मौक़िफ़ के बारे में आगाह किया। उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और इस एतमाद का इज़हार किया कि चीन इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। वांग यी ने कहा कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, मफादात के दिफा और अपने अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। वांग यी ने कहा कि चीन मौजूदा सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए ईरान और दीगर मुल्कों के साथ रवाबित बरकरार रखेगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात किए। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर बैठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इसराइली जारहियत पर ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं।
फलस्तीन कॉज हमारे दिल के बहुत करीब है। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए गए हैं। तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी कमी की गई है। हुकूमत ने आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए इनकलाबी इकदाम किए हैं। सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। जहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर मजीद जो है वो टैक्स नहीं लगने दिए गए, वहीं पे जो टैरिफ रिजीम आई है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना अब आसान होगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ये वजीर आजम का विजन था शहबाज शरीफ साहब का कि खाम माल सस्ता आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। वजीर आजम के विजन के तहत कराची के पोर्ट पे पहली मर्तबा फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम आया है। तमाम सेक्टर्स में इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम किया जाएगा। एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे। विंडफॉल टैक्स लगाया बैंक्स के ऊपर। विंडफॉल टैक्स 23 अरब रुपए का अलग, 34.5 अरब रुपया उसके अलावा आ चुका है सरकारी खजाने के अंदर। एग्री सेक्टर के वाले से मैं ये कहना चाहता हूं, वजीर आजम ने फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रोग्राम है। और इकोनॉमी को अब ये टेक ऑफ की तरफ जा रही है, हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका हिस्सा डलेगा तो तारीख हमेशा आपको याद करेगी। वजीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन ने अवाम के लिए बजट के हवाले से कोई तजावीज नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम को कोई रिलीफ फराम नहीं किया गया। अभी तक पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को तरसीलात ज़र भेजने से रोका, लेकिन मौजूदा हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों के बायस रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क में आए। वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की शदीद मुजम्मत करता है, ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने हिमायत पर सिक्योरिटी कौंसिल में पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, नायब वज़ीर आज़म ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो इज़हार यकजहती किया, पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इललेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों के लिए, गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई, वो पूरी कौम की मंगों की तर्जमानी करती है। वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और इस हवाले से अपना किरदार निभाता रहेगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन की तबाही में मुलव्विस है और अब ईरान पर जारहाना हमले कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तारीखी, मजहबी और जोग्राफियाई ताल्लुकात मौजूद हैं। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन और यमन को टारगेट बनाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने सरेंडर का फैसला करते हुए अभिनंदन को 24 घंटों में वापस भेज दिया। जब जंग के बाद मुदरार चंद हफ्ते पहले यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है, यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए, उनमें तेल था या पानी था, क्या था, पूछा तो जाता है इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था, आज भी फुली इक्विप्ड है, और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो सारे इक्विप्ड हैं।
पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचाने वालों को मुआशी बेहतरी हजम नहीं हो रही। जब ये बजट के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो इनसे हम पूछते हैं कि आपने भी एक बजट दिया था जिसमें विसल ब्लोअर एक्ट भी था, जहां आपने मिलियन सुनामी ट्री की बात भी की थी। एक इदारा था जिसका नाम एहतसाब का इदारा था, नैब, जिसको आपने 11 साल से ताला लगाया हुआ है। करप्शन के भरमार है, करप्शन के केसेस रोज सामने आते हैं, कोई इदारा चलाने के लिए नहीं है। दोनों हाथों से लूटा आपने 11 साल से। आप एक नारे के ऊपर आए थे करप्शन को खत्म करने, आज आप करप्शन प्राइस इंडेक्स में इनके टाइम पे हम 4 पॉइंट्स ऊपर चले गए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कौम ने मुत्तहिद होकर मुसल्लह अफवाज के हमरा जंग लड़ी। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनती और माइनर्स वर्कर्स के बच्चे आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। कारकुनों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा और फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर लीं। पंजाब में वर्कर्स के बच्चे कॉमसेट यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, सब कैंपसेस एबटाबाद, वा, अटक, लाहौर, साहिवाल और बिहाड़ी में पढ़ सकेंगे। माजूर और फौतशुदा वर्करों के बच्चे को भी कॉमसेट यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। रजिस्टर्ड वर्कर्स इस्लामाबाद कैंपस में 9 जुलाई, लाहौर कैंपस 17 जुलाई, वाहकेंट और एबटाबाद में 4, बिहाड़ी और अटक में 11 और साहिवाल में 15 अगस्त तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। दरखास्त फॉर्म के साथ वर्कर का कौमी शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तालिब इल्म का कौमी शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी कार्ड या ओल्ड एज बेनिफिट की कॉपी मुंसलिक करना होगी। बच्चे कॉमसेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म में जमा कराएंगे। वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चे के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई बच्चा, चाहे वो मजदूर का बच्चा है, अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। और हिजाज मुक़द्दस से पाकिस्तानी हुज्जाज की आमद का सिलसिला जारी है। हफ्ता 14 जून तक 11,418 हुज्जाज इकराम वतन वापस पहुंचे। आज 20 परवाज़ों के जरिए मजीद 4,995 हुज्जाज इकराम वतन पहुंचेंगे। आज इस्लामाबाद और लाहौर में 6, कराची में 4, मुल्तान 3, जबकि कोयटा में 1 हज परवाज लैंड करेगी। आलमी सतह पर फ़िज़ाई ट्रैफिक में तातुल के बावजूद पाकिस्तान का पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है कि वापसी को मजीद हमवार बनाने के लिए हुज्जाज इकराम दिया गया नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और अपने सामान का वज़न फ़िज़ाई टिकट पर दर्ज मुकर्ररा हद के मुताबिक रखें। मजीद रश के बायस सऊदी एयरपोर्ट पर अपनी परवाज से 6 से 8 घंटे पहले पहुँचें। नौशहरा में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को एक बार फिर धोखा दिया जा रहा है और पीटीआई झूठ पर झूठ बोल रही है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट झूठ का पुलंदा है। मजीद उनका कहना था कि मरकज में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो केपीके को कोई फंड्स नहीं दिए गए थे। केपीके में 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और स्कूलों की हालत अबतर है। तालीमी इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद तालीमी निज़ाम तबाहाल है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से अपोजिशन अरकान को एक पाई भी नहीं दी जाती। इख्तियार वली खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मफरूज़ों पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मंसूबों का ऐलान तो करती है लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं होता। जिनके पास अपना वज़ीर ख़जाना नहीं, उन्होंने सूबे को क्या चलाना है। केपीके हुकूमत ने अपनी ही शुरू करदा कई स्कीमें बंद कर दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोहरा मयार अपनाया हुआ है। आगाह करेंगे आपको मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। सियोनी फ़ौज ने खान यूनुस और जनूबी गजा के करीबी कस्बों अबासान और बनी सहेला के रिहायशियों को हुक्म दिया है कि वो अपने घर छोड़कर चले जाएं। गुज़िश्ता 19 माह से जारी सियोनी फोर्सेस के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 55,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों से बदसलूकी की रोकथाम से मुतल्लिक शऊर उजागर करने का दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बुजुर्गों से बदसलूकी एक आलमी और समाजी मसला है। हमें बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना चाहिए।
جب ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے. آپ بچپن سے جوانی کی طرف اور جوانی سے پھر ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ساری بہاریں انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ ارتقاء جو ہے آپ کو ایک دفعہ پھر بچپن کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور کس طرح سے کہ آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو تکالیف ہیں، وہ آپ خود دور نہیں کرتے بلکہ آپ کے آنے والی نسل کرتی ہے. جس طرح بچوں کو بڑے پالتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب یہ ذمہ داری بچوں پہ آ جاتی ہے، یعنی کہ بچوں نے ہی بڑوں کی خدمت کرنی ہے. یہ معاشرے کا بھی فرض ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان نے جو کچھ قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے. ہماری صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے اس بارے میں مناسب قانون سازی کی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ صرف قوانین بنا دینے سے عمل درآمد نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں خلوص نیت کی ضرورت ہے. معاشرے کے بزرگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آبیاری کی ہے آنے والی نسلوں کی. اور اب یہ پے بیک ٹائم ہے معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، ہم سب کے لیے، ان کے لیے. حکومت اور پاکستانی معاشرہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے لیے احترام بھی رکھتا ہے، اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا جو ہے اسے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور بہاولپور کے شہریوں کو اب ایک ہی چھت تلے 160 سے زائد سرکاری سہولیات دستیاب ہیں. یہ خدمت مرکز بہاولپور جدید ٹیکنالوجی اور شفاف سسٹم کے ساتھ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے. رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. بہاولپور کا ای خدمت مرکز شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہاں نادرا، لینڈ ریکارڈ، ایکسائز، ٹریفک پولیس ڈومیسل، رجسٹری، ڈرائیونگ ٹیسٹ اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سمیت 160 سے زائد سروسز مہیا کی جا رہی ہیں. یہ مرکز روزانہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے شہریوں کی خدمت انجام دیتا ہے، جہاں ہر سروس ایک ہی جگہ دستیاب ہے. ای خدمت مراکز پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا واحد ایسا ادارہ ہے جو ایک ہی چھت تلے 160 پلس سروسز سٹیزنز کو فراہم کر رہا ہے. اب تک ہمارے 15 ای خدمت مراکز سٹیزنز کو بآسانی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آئی ڈی کارڈ کے لیے پہلے میں آئی تھی تو وہ بھی میرا یہاں سے رینیو ہو گیا تھا، اور اب میں لائسنس کے لیے آئی تو وہ بھی میرا یہاں سے رینیو ہو جائے گا. مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میں یہاں پہ اپنی بائک کے رجسٹریشن کے لیے آیا تھا تو بہت اچھی سہولیات ہیں. سب کچھ ایک چھت تلے ہو گیا. نادرا ای ویریفیکیشن ہوئی ہے، اور بھی جو پروسیس تھے وہ سب یہیں پہ ہو رہے ہیں. ای خدمت مرکز بہاولپور ٹیکنالوجی اور عوامی سہولت کا بہترین امتزاج بن چکا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری ایک ہی چھت تلے فراہم کی جانے والی سہولیات سے ضرور فائدہ اٹھائیں. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور. ستھرا پنجاب کے تحت صوبے بھر میں تجاوزات کے خاتمے اور بازاروں کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں. ضلع لودھرا میں پرانے اور تنگ بازار کو نہ صرف کشادہ بنا دیا گیا ہے بلکہ جدید طرز پر خوبصورت شیڈز بھی نصب کیے گئے ہیں. رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا. لودھرا کا قدیمی بازار جو برسوں سے غیر قانونی تھڑوں، شیڈز اور تجاوزات کی زد میں تھا، بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت نیا روپ اختیار کر گیا. ضلعی انتظامیہ نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف تجاوزات کا خاتمہ کیا بلکہ بازار کو کشادہ اور قابل آمد رفت بنایا. اب ہم جو مین بازار ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور مین بازار کو بھی اسی طرح کریں گے. اس ترقیاتی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کمشنر ملتان نے کیا، جہاں مقامی تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی. تاجر برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے کاروبار میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور خریداروں کی آمد میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. ایک خوبصورت مارکیٹ بن چکی ہے اور کسٹمر کا رجحان بھی بڑھ چکا ہے. بہت اچھا سسٹم بنایا انہوں نے، اور یہ تجاوزات ساری ختم کرائی اور ہمیں بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ. بازار میں جدید طرز کے خوبصورت شیڈز نصب کر دیے گئے ہیں جو نہ صرف دکانداروں کی سہولت فراہم کر رہا ہے بلکہ خریداروں کے لیے بھی سائے دار ماحول مہیا کرتے ہیں. عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا. اور جہلم میں پکھوال تا وچلا بیلا سڑک اور پل کی تعمیر 25 کروڑ 73 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہو گئی ہے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے افتتاح کر دیا. جہلم سے نعیم اختر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے. ضلع جہلم کے نوائی علاقے پکھوال سے وچلا بیلا تک 3 کلومیٹر طویل سڑک اور دریا پر وچلا بیلا پل کی تعمیر 25 کروڑ 73 لاکھ کی لاگت سے مکمل کر لی گئی ہے. اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح
वज़ीर मुल्कत बराए रेलवे व खजाना बिलाल अजहर कियानी ने किया। मकामी अफराद ने इस मंसूबे को दरीना मुतालबे की तकमील करार दिया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया है कि सिर्फ बातें करने से और जलसे करने से मुल्क नहीं चलता, काम करने से मुल्क चलता है, और जब काम किए जाते हैं तो फिर काम नज़र भी आते हैं। 7 गांव का देहात है इधर, और कम से कम 7,000 की आबादी है, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब कोई आदमी बीमार हो जाता था तो इनको बहुत मुश्किल होती थी। तकरीब से खिताब करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि विचला बेला पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि ये तरक्की और खुशहाली की लामत है। इनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती मंसूबों में तेजी ला रही है। वजीर आजम साहब अपनी काविशें कर रहे हैं, वजीर आला साहब अपनी कोशिशें कर रही हैं और काम कर रही हैं। मैंने कुछ मंसूबे उनके आपको गिनवाए, मगर उसके बावजूद भी जो काम रह जाते हैं, इन फंड से हमें मौका मिलता है कि हम और अपने इलाके के मसाइल हल कर सकें। पुल की तामीर से कबल मकामी अफराद दरिया अबूर करने के लिए खतरनाक डोली का सहारा लेते थे, जो न सिर्फ जान के लिए खतरा था बल्कि वक़्त का ज़िया भी साबित होता था। पुल की तामीर से न सिर्फ फासले कम हुए हैं बल्कि रोज़मर्रा के सफ़र और सामान की तरसील भी आसान हो गई है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। सवात के स्कूल्स में तलबा में मुताले का शौक बेदार करने और किताब की अहमियत उजागर करने के लिए कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। सवात से रिपोर्ट करेंगे बरकत अली। नौजवान नस्ल खुसूसन तलबा में किताब की अहमियत उजागर करने के लिए स्वात की मुख्तलिफ स्कूलों में किताबों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबों के स्टॉल लगाए गए। नुमाइश की मुतंज़िमीन के मुताबिक स्कूलों में किताबों की नुमाइश का मकसद एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबों को रियायती नर्ख पर बच्चों को फराहम करना है, जो आमतौर पर बाजार में दस्तियाब नहीं होते। स्कूलों में बुक फेयर लगाने का मकसद ये है कि बुक लविंग कल्चर को प्रमोट करें, दिलचस्पी स्टूडेंट्स की बढ़े। उनको हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं 20 से 40% ताकि बुक्स लेके इल्म हासिल कर सकें। बदकिस्मती है कि स्मार्टफोन आने की वजह से खासकर बड़ों ने भी स्टडी करना छोड़ दिया, जनरल स्टडी, तालिब इल्मों की सीरीज स्टडी करना छोड़ दी है। तो हमारा मकसद ये है कि किताब की वजह से उसको हम आशना करें जनरल स्टडी की। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो असलाफ है, तो उनको कामयाबी इसी किताब के मुताले से मिली है। एज ए स्टूडेंट मैं भी इस किताब मिलने से बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे तकरीबात मुनक़िद होंगे इंशाअल्लाह। स्टॉल्स में मौजूद मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबों, जिनमें उर्दू और अंग्रेजी अदब, नावल, तारीखी, दीनी मौज़ूआत, मालूमात आमा और बच्चों के लिए कहानियों की किताबें शामिल थी, स्कूल के तालिब इल्मों ने खरीदे और ऐसी नुमाइश की बाकायदगी से इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। नौजवानों खुसूसन तालिब इल्मों को सोशल मीडिया की मनफी असरात से महफूज रखने और उनकी ज़हनी तरबियत के लिए स्कूल कॉलेज में किताबों की अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। और दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जिला पाकपतन में भी लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला जारी है। मजीद बताएंगे अब्बास अली आरफी। लाइव स्टॉक कार्ड के दूसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन और रहनुमाई के लिए जिला पाकपतन में 2 डेस्क कायम किए हैं। जिले के तमाम 40 हस्पतालों और डिस्पेंसरियों में 14 डेस्क कायम किए गए हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स आते हैं उनको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जा रही है। जिन लोगों ने लाइव स्टॉक कार्ड के लिए अप्लाई किया था, अर्बन यूनिट ने उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन का अमल स्टार्ट कर दिया हुआ है। जो लोग अहल होंगे उन्हें लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया जाएगा। सूबा पंजाब के शनाख्ती कार्ड और फाल सिम रखने वाले अफराद जो महकमा लाइव स्टॉक की हेल्पलाइन 9211 पर रजिस्टर्ड हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जानवरों की खुराक है, वो खुराक खरीदने के लिए हमें गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जिसका ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे पास 5 जानवर हैं और मैंने मरीम नवाज के जो लाइव स्टॉक कार्ड है उसके लिए अप्लाई किया है। तो जैसे ही मुझे वो कर्जा मिलता है अपने जानवरों के लिए वंडा या खरीदूंगा। सारे ਅਸੀਂ कार्ड अप्लाई किया, साढ़े को 20 जानवर ने ते ਅਸੀਂ सारे वंडा खरीदना है ते गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा काम है। 5 से 20 मवेशी रखने वाले फार्मर्स और मवेशी पाल अफराद लाइव स्टॉक कार्ड हासिल करने के बाद 1,35,000 से 5,40,000 रुपए तक का बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाइव स्टॉक कार्ड का ये प्रोग्राम देही मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए एक इनकलाबी इकदाम है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।
ضلع وہاڑی میں مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے مالکان کو حکومت پنجاب کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ گاڑی مالکان کو زائد کرایہ، گنجائش سے زیادہ سامان یا مسافر بٹھانے اور تیز رفتار گاڑی چلانے پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تفصیل بتائیں گے وہاڑی سے بہادر حسین۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وہاڑی بابر سلمان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے مالکان کو پنجاب حکومت کی پالیسی بارے آگاہ کیا گیا۔ گاڑی مالکان کو بتایا گیا کہ وہ بسوں کی چھتوں پر مسافروں کو سوار نہ کریں، اوور لوڈنگ اور اوور سپیڈنگ سے بھی اجتناب کریں۔ گاڑی مالکان کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان گاڑیوں کو اڈوں پر استعمال کریں جن کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہوں، اور مال بردار گاڑیاں ویٹ لمٹ کے مطابق وزن لوڈ کریں۔ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کسی کو بھی گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹریفک قوانین کے حوالے سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے وہ خوش آئند ہے۔ اس سے روڈ پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس سے کافی بچت ہو جائے گی۔ کم عمر بچوں کو گاڑی استعمال کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بعد ازاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاڑی بابر سلمان کی زیر قیادت واقع کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی غزالہ کول نے ٹریفک پولیس کے افسران کے ہمراہ وی چوک پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی۔ ضلع بھر میں اوور لوڈنگ روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ گاڑی مالکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ اور اب آپ جان سکیں گے موسم کی صورتحال۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شہید بے نظیر آباد میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت پسنی 49، جیکب آباد 48، بہاول نگر 47، سبی، سکھر، روہڑی، موہنجو داڑو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے، تاہم پنجاب کے مختلف شہروں اور اسلام آباد میں ہلکی بارش سے موسم کی شدت میں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے کنزا نقوی کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں سورج کا پارا ہائی، جھلسا دینے والی گرمی کے باعث معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی توقع ہے، تاہم رات کے اوقات میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم مٹھی، عمرکوٹ، بدین، کراچی اور حیدرآباد سمیت کچھ اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے۔ ہوائیں چلنے کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مدثر خان سے۔ جی مدثر خان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج صبح سے ہی موسم خوشگوار ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ کئی روز سے جاری گرمی کی شدید لہر کے بعد آج موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور لاہور شہر کی رونقیں دوبارہ بحال نظر آ رہی ہیں۔ آئندہ 2 روز تک سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق گو کہ اس وقت درجہ حرارت میں کمی ہے، لیکن جو گرمی ہے وہ ابھی بھی نقصان دہ ہے۔ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں، خصوصاً بزرگ، بچے اور خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ پرہیز کریں۔
ان کے لیے یہ ہیٹ ویو کی لہر زیادہ خطرناک ہے۔ PDMA کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔ تمام جو صوبے کے ہسپتال ہیں وہاں پر ہیٹ ویو کاؤنٹرز آپریشنل ہیں، جہاں پر ہیٹ ویو سے متاثرہ مریضوں کو فوری طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام ہسپتالوں میں جو ضروری ادویات ہیں ان کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں اور اب رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔